السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبی وللمؤمنات والمؤمنات وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ محترم ساتھی دوستو، سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فعلم، پس جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کو امن و طرف کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ یہاں میرے محترم ساتھی دوستو، یہاں پر اللہ نے علم کی اہمیت دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ علم کے بغیر عمل بے معنی ہے، اور عمل کے بغیر علم بے معنی ہے۔ اس لیے کہ علم کے مطابق عمل ہو تبھی ٹھیک ہے۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو بھی ہلاکت ہے، عمل ہے علم نہیں تو بھی ہلاکت ہے۔ اس کی دلیل آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نصرانی کیوں گمراہ ہو گئے، ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے۔ یہودی کیوں گمراہ ہو گئے کہ ان کو علم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کتابوں میں بھی موجود تھا، اور ممکن ہے کہ ہے بھی ہے، مٹا دیا ہوں، اللہ عالم۔ اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور بغض و حسد کے بنا پر بھی کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے جو ہیں نا بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن بنو اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی لیے ان کے دلوں میں بغض ہو گیا کہ ہمارے کنبے قبیلے سے نبی نہیں آئے ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور مرتے تم تک دشمنی رہے گی۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہودی مسلمانوں سے اتنی دشمنی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں، باقی قوم سے نہیں ہے، نہ عیسائی سے ہے، نہ اور دیگر لوگوں سے، سوائے مسلمان سے ان کا دشمنی ہے۔ یہ شروع سے ہی قسم کھائے ہوئے ہیں کہ ہم جب تک بحیات رہیں گے مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے۔ تو میرے محترم ساتھی دوستو، بغیر علم کے عمل فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی جو آیت اتاری ہے غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا اتاری ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، سب سے پہلے پڑھو۔ تو یہ میرے محترم مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم سیکھیں۔ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو نا علم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور علم تب ہوگا کہ جب آپ پڑھیں گے۔ سنی سنائی بات پہ علم نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے سوال کر دیا کہ آپ یہ کہاں پر سیکھے ہوئے ہیں، تو فلانے کو دیکھا تو اس لیے میں کر رہا ہوں، لیکن وہی کہیں گے کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ہم فلانا حدیث پڑھی ہے، بخاری مسلم، تو پھر وہ آدمی مطمئن ہو جائے گا، پھر آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن کسی سے سنا ہے تو کہے گا کہ کوئی ضرور نہیں ہے کسی سے سنی ہوئی بات اچھی ہو۔ تو ضروری ہے کہ پڑھا جائے، اور پڑھنے کا، علم سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا میرے محترم، کوئی بھی عمر نہیں ہوتا، کسی بھی عمر میں علم سیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ علم جس کے وجہ سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، وہ علم جس کی وجہ سے امن و امان رہے، وہ علم جس علم کو وجہ سے انسان عمل اچھا کرے، وہ علم جس کے وجہ سے معاشرہ اور امن و امان اس دنیا میں رہے، یا اپنے گھر میں ابھی بچوں میں آدمی جب علم رہے گا تبھی انصاف کر سکے گا۔ علم نہیں ہے تو کتنے ہمارے لوگ ہیں جو بڑے صغیر میں کہ اپنے اولادوں میں انصاف نہیں کر پاتے ہیں، کسی کو پورا اتنا مال دے دیا، کسی کو دیا ہی نہیں، کسی کو جا کے جو نا اولاد کے نام سے لکھ لیا، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے، کیوں؟ کہ اگر علم ہوتا ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے تب تک اس کے ورثے میں سے اولاد کا حق نہیں ہوتا ہے، وہ کھائے پیے ورثے میں سے بیچ کے جو بھی کرے، لیکن وہ کسی ایک کو نہیں دے سکتا۔ باپ کے مرنے کے بعد ہی جو ورثے میں سے حصہ ہے،
माँ का भी, अगर बेटा लगाते हैं तो माँ का भी हिस्सा है, माँ के भी हिस्सा है। तादाद के हिसाब से बच्चों के 6ठा और 8वां हिस्सा माँ का बनता है, उसके बाद जो है ना। लेकिन आज देखें, इल्म के बिना आज मुसलमान इतने कोरे हैं कि तकरीबन अरबों के नहीं, लेकिन हमारे बड़े सगीर में अक्सरियत लोग अपने वर्ष में से बेटियों के बहनों को हिस्सा नहीं देते। बेटी को तो खैर जो है ना बाप चला जाएगा तो वो भाई देगा, लेकिन अक्सर भाई जो है ना अपने बहनों को वर्ष में से हिस्सा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सोचते हैं कि हमने शादी कर लिया, इतना दहेज दिया, इतना पैसा लगाया तो उसी में कट गया। नहीं, आप अल्लाह के इल्म को, अल्लाह के कानून को चेंज कर रहे हैं। चाहे आप 10 लाख अपने बहन की शादी में लगा दें, उसके बावजूद भी आपके अपने बहन को वर्ष में से हिस्सा देना पड़ेगा। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह का ये कानून है कि जो आप मर्जी करें। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, अल्लाह जानता है। वो भी आधा हिस्सा देने के बाद अल्लाह ने कहा है, एक बेटे के बराबर एक बेटी को आधा हिस्सा है। अल्लाह ने अदल किया, इंसाफ किया है। अल्लाह के इल्म की रोशनी हमारे पास मौजूद है, कुरान मौजूद है। उस इल्म के मुताबिक हम अपने औलाद के साथ अदल करें। बेटा को दीनदार बनाएं तो बेटी को भी दीनदार बनाएं। खुद इल्म सीखें और सिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है, पढ़ता भी है पढ़ाता भी है। तुम में से बेहतर इंसान वो है। तो मेरे मोहतरम, आज मुसलमान जो इस्लाम को छोड़ दिया है, किस वजह से छोड़ दिया? इल्म नहीं है। बेगर इल्म का अमल बिल्कुल फ़ायदा है। कल क़यामत दिन अगर वो इल्म के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह ताला वो अमल आपके और हमारे मुंह पर मार देगा। इसीलिए इल्म ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको क्यों भेजा है, इसका सबब क्या है, इसका इल्म कुरान में मौजूद है। कैसे हमको ज़िंदगी गुजारना है, ये सब कुरान में मौजूद है। इल्म है अल्लाह ताला ने दिया हुआ, हमारे नबी के ज़रिए हमको इल्म दिया है। तो मेरे मोहतरम, गुजारिश यही है आप लोगों से कि सबसे पहले दीन के इल्म सीखिए। आज सबसे पहले हमारा बच्चा आँख खोलता है तो हम क्या करते हैं? उसको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पहले व्हाट इज योर नेम पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है ना बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं। वो इंग्लिश में बात करता है, बड़ा फ़ख्र होता है उसके बाप को कि हमारा बेटा तो इंग्लिश में बात करता है। अस्तगफिरुल्लाह। फ़ख्र की ये बात है कि अच्छा कुरान पढ़े, अच्छा क़िरात करे। फ़ख्र ये है कि दीन के दाई बने, लोगों को दीन की दावत दे कि अल्लाह उसके रसूल के ये तरीका है। फ़ख्र इस पर होना चाहिए। तो जैसा वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ मुहावरे एक है, जैसा हलवा वैसा फातिया। जैसा हमारा ईमान अकीदा है, अमल है, वैसा ही अल्लाह ताला हमारे साथ कर रहा है। आँख उठा के देख लें, आप माशरे में आँख उठा के देख लें, 99% मुसलमान जो है ना परेशान है। लाइल्मी के बिना पर ऐसा अमल करता जिसका फ़ायदा नहीं है। सहाबा ने थोड़े ही अमल किए और जन्नत ले उड़े, और हम दिन रात सर पटकते हैं तो उसका बावजूद भी हमारे मसले हल नहीं होते हैं। इसलिए कि करते हैं तो अपने मर्जी से करते हैं, सोचते हैं कि ये कम है, ये कम है। अगर कम है तो हमको नबी ने बताया है तो अल्लाह को पता है ना कम है, और नबी को पता होना चाहिए कम है ना, हमको कैसे पता कि कम है? इसलिए मेरे मोहतरम, ये सब लाइल्म के बिना पर हम लोग करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हारा माबूद कौन है। आप देखें हमारे बड़े सगीर में लोग मदरसे थोक के हिसाब से मदरसे हैं। हमारे यहाँ मदरसे गांव मदरसे हैं, उसके बावजूद भी लोग जो ना शिरक में मुब्तला हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाइए अजमेर, देखिए, जब मजारों पे देखिए कि इतनी भीड़ लगी हुई है कि मत पूछिए। अगर उतनी भीड़ काश के मस्जिदों में होती तो आज हमारा ये हाल नहीं होता जो हो रहा है। क्यों? इल्म नहीं है। लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब पावर दे दिया है और इन्हीं के पास सारा पावर है। इल्म नहीं है। अगर उनके इल्म होता तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कुरान में, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकुन मिन कितमीर। सूरह फातिर आयत नंबर 14 में अल्लाह ने बयान किया है कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो और जिनसे मदद मांगते हो, वो खजूर के गुठली के ऊपर जो छिलका उसका भी मालिक नहीं है। अगर इल्म होता तो जाता, नहीं जाता। कौन चाहता है कि हम जहन्नम में जाएं? लेकिन इल्म नहीं। हमारे हजरत आला हजरत लोग जो है ना, उनको बताते भी नहीं हैं, 4 महीने के लिए चलो, 6 महीने के लिए चलो, उसके बाद वो बेचारा वैसा है को वैसा ही है। ना टखने से ऊपर कपड़ा है, ना लंबी दाढ़ी है, ना कुरान अच्छा पढ़ना आता है, ना जो है ना अच्छा नमाज पढ़ता है।
फ़ायदा क्या मेرے भाई ऐसी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला फ़ायदा नहीं मेरा मोहतरम। सच अल्लाह ताला ने कहा है कहे ऐ आदम कल क़यामत के दिन सबसे पहला जन लोगों को इधर से जन्नत और जहन्नम की तरफ फेरो। आदम कहेंगे कि अल्लाह ताला कितने को फेरें? अल्लाह कहेगा 999 को जहन्नम की तरफ फेरो, एक को जन्नत की तरफ फेरो। काश के हमारा भी 999 में हाल हो जाए तो हम क्या करेंगे मेरे मोहतरम। इसलिए इल्म कुरान मौजूद है, इसको तर्जुमे से पढ़िए, इसको इल्म सीखिए, उसके बाद अमल कीजिए। ये नहीं कि हमारे बाप ने कह दिया है कि तुम जो है ना सऊदी अरब ही ज़िंदगी गुजार देना तो गुजार देंगे, ये नहीं इस्लाम है। जहाँ अच्छा होगा वहाँ करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के मामले में मेरे सहाबा तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, तुम जैसा दिल करो वैसा करो, दीन के मामले में हमसे पूछा करो, हमसे जो है ना तालीम लिया करो। तो मेरे मोहतरम कहने का मकसद यही है मेरे मोहतरम कि ज़्यादा मुसलमान हैं बड़े सगीर में। आप देखें एक मुल्क में 20 करोड़, एक में 25 करोड़, इंडिया में कम से कम 50 करोड़, 1 अरब मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदर कीमत नहीं है। आप आँखों से देख रहे हैं, मुहासबा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इज्जत दे तो इल्म सीखें, कुरान हदीस के उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के इल्म सीखने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। मोहतरम साथियों दोस्तों, गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं ताकि उनके भी शायद के किसी शायर ने कहा कि शायद के मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए, शायद के उनके दिल में हमारी बात उतर जाए और अल्लाह के तरफ रुजू करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ रुजू करें ताकि उनका भी आखिरत समझ जाए। जज़ाकल्लाह खैर।